Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are studying thermodynamics, and in thermodynamics last topic we completed work and also completed numerical on the work. Now today we will see the heat. What is heat? First of all, you know that temperature. What is temperature? Yes, you know that temperature is the degree of hotness or coldness. It tells about the degree of hotness or coldness. How much anything is hot, how much anything is cold. If you use thermometer to measure your body temperature, if temperature is 100 degree centigrade, it means there is fever, your body is heat up. If temperature is below 90, then your body will be cool. Thus the temperature tells about the degree of coolness or hotness. Okay, temperature tells about the degree of hotness or coolness. Okay, now then what will be the heat? Student, one thing you imagine, if your body has temperature 100 degree and someone has temperature below 90 degree, if that person touch you, then what will happen? Then temperature, then heat will be transferred to the your body to the another body on touching. It means from high temperature to low temperature heat will flow. It means heat is a type of energy which flow from high temperature to low temperature. It means heat is a type of energy which flow from high temperature to low temperature. ओके, समझ आए बच्चों? पहले फिर से एक बार बता देते हैं कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस को बताती है। अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री है तो बोले, और उसको अगर हम टच करेंगे तो हमें उसकी बॉडी हॉट समझ में आएगी, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे इसका टेम्परेचर राइज अप है, ये बॉडी हीट अप है। और अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर 98 से नीचे है और 98 है, उसको बॉडी को टच करेंगे तो अगर बॉडी हीट अप नहीं महसूस होगी तो कहेंगे कि फीवर नहीं है, हीट नहीं है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हमारा कितना डिग्री हॉटनेस और कूलनेस है उसको बताता है। टेम्परेचर क्या बताता है? हमारा डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस को बताता है। अब दूसरी बात ये होती है हीट। फिर हीट क्या होगा? जैसे कि हमने बताया कि अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री है, 100 डिग्री से ज़्यादा है, और अगर हम उसकी बॉडी को टच करते हैं तो टच करने के बाद हमें जो टेम्परेचर मिलेगा, जो हमें महसूस होगा, वो क्या होगा कि हमें हीट महसूस होगी। क्यों महसूस होगी? क्योंकि हमारा टेम्परेचर उस पर्सन से कम था, इसलिए हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र हो गई। यानी कि जो हमारा हीट है एक तरह की एनर्जी है जो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। क्या बात समझ में आ गई? अब आई होप अब बात समझ में आ गई होगी कि हीट क्या है। अब इस हीट को हम क्यू से दिखाते हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं एक बार नोट्स के रूप में। टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में लिख देते हैं। टेम्परेचर
temperature tells about temperature is the सीधे लिखें temperature is the degree of hotness or coldness. Okay, degree of hotness or coldness. ठीक है, and heat is a type of is a form of energy, energy which is due to change in temperature. Okay, heat is the type of form of energy which is due to change in टेम्परेचर के चेंज के कारण होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कि इट इज डिनोटेड बाय एक बात और कि हीट इज पाथ डिपेंडेंट okay, and that is it flow from high temperature to low temperature. T1 high temperature to low temperature. Okay, it is denoted by Q. Okay, and if Q is positive, if Q is positive, then heat will flow from surrounding to system. Okay, if Q is negative, then heat will flow from system to surrounding. From system to surrounding. Okay, it will flow from system to surrounding. दो चीज़ें हो गई कि अगर हीट पॉजिटिव है
ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर पॉजिटिव है तो हीट विल फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, अगर ये सिस्टम है और ये इसका सराउंडिंग है, तो अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आ रही है तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि हीट ऐड हो रही है सिस्टम में। और अगर सिस्टम से एनर्जी निकल रही है तो उस कंडीशन में निकल रही है तो नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी। और हीट फ्लो करेगी सिस्टम से सराउंडिंग की ओर। आई होप इतनी बात समझ में सबको आ गई होगी। चलिए अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। क्या है रिलेशन यहाँ पे? If change in temperature, if change in temperature is delta T, then Q will be coefficient हीट इंटू डेल्टा टी। ओके, अगर किसी सिस्टम में टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी का है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ हीट को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हीट पता लग जाएगा। अब ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ हीट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हीट depends upon size, composition and nature of system। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी, देन Q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे Q इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ हीट इंटू डेल्टा टी। ओके, और कोफिशिएंट ऑफ हीट डिपेंड अपॉन द साइज। क्या साइज है सिस्टम का? ठीक है, सिस्टम की साइज क्या है और कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर के सिस्टम बना है, तो सिस्टम से हीट निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी इसके ऊपर डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ सिस्टम क्या है, किस तरह का वो सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हीट कैपेसिटी। क्या देखेंगे? हीट कैपेसिटी। तो वर्क की तरह से हमारा हीट भी पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हीट किधर से किधर की ओर जा रही है। तो एक तरह से हमारा ये भी हीट भी पाथ डिपेंडेंट है वर्क की तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी क्या होती है? ठीक, हीट कैपेसिटी ओके। हीट कैपेसिटी, हीट क्या है? Q इक्वल टू हम जानते हैं कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी।
ओके। और इफ कोफिशिएंट इज सी, इफ कोफिशिएंट इज सी, इफ कोफिशिएंट इज सी, then Q is equal to C delta T, Q is equal to C delta T, okay. And where C is known as heat capacity, and it can be defined as amount of heat per unit per degree change in temperature ओके। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी को हम सी से दिखाते हैं, है ना। तो पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे सिस्टम। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर चेंज होता है किसी सिस्टम का, तो जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट, उसी को हम सी कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ओके। अब यहाँ से 1 डिग्री अगर हीट कैपेसिटी की वैल्यू लार्ज आ रही है, मतलब कि बहुत कम टेम्परेचर राइज किया है, ठीक है, और अगर हीट कैपेसिटी की वैल्यू लो आ रही है, तो मतलब वहाँ पे टेम्परेचर राइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मोलर हीट कैपेसिटी देखेंगे, ठीक है। सिंपल, अब इसका डेफिनेशन पता लग गया कि हीट कैपेसिटी क्या है। इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ओके, चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। आई होप सब दिख रहा है, ओके। चलिए, अब इसके बाद हम लोग जो है हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग देखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे देखेंगे क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, हीट कैपेसिटी ये होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि बस एक वर्ड यूज कर लेंगे अमाउंट का। तो अगर कहें कि 1 ग्राम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जितनी हमें हीट की ज़रूरत होगी, वो हमारी हीट कैपेसिटी होगी, ठीक है। हीट required
the required to raise 1 degree temperature of 1 gram of a mass is known as specific heat capacity. Specific heat capacity, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम या 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। और स्पेसिफिक इसको हम Q = CM ΔT से दिखाते हैं, ठीक है। वेयर C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और M इज द mass of substance and delta T is the change in temperature। यहाँ पे टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है केल्विन में उसको चेंज किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमारा आ जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी सिंपल है। यहाँ पे हमने लिखा है रिक्वायर्ड टू 1 ग्राम मास, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस is known as heat capacity, molar heat capacity, known as molar heat capacity, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल। सारी डिफिनीशन आगे चल करके सारी डिफिनीशन बहुत ईजी है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे 1 ग्राम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जितना हमें टेम्परेचर राइज करना पड़ता है, या 1 डिग्री किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड यहाँ पे इफ़ 1 मोल सब्सटेंस है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा वो हमारा हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, ओके। तो ये हमने आज जान लिया। अब हम लोग कल की क्लास में जो है कि देखेंगे रिलेशन, ठीक है। अब हमें कल की क्लास में देखना है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑन
constant pressure, relation between the molar heat capacity at constant volume and constant pressure. Thank you. Have a nice day.